Hello, students. I welcome you all to my YouTube channel E Political Science. Today, we will discuss an important topic that is on what is ideology, विचारधारा क्या है. हालांकि आप लोग सब काफ़ी परिचित होंगे ये शब्द से, विचारधारा और इंग्लिश में आइडियोलॉजी, because we are all familiar with this term, and since it has been used and it is always there in our daily life, in our development, in our lookout, in our behavior pattern. There are many things, there are many ideologies which are concerned with our day-to-day life. But a very important thing is that ideology, there are many times these ideologies they overlap also, और ओवरलैपिंग की वजह से कई बार कुछ आइडियोलॉजीज़ थोड़े से हमें कंफ्यूजिंग भी लगते हैं, सिमिलर लगते हैं, एक जैसे लगते हैं. और क्योंकि बेसिकली इन पॉलिटिकल साइंस आइडियोलॉजी दे आर वेरी वेरी important, because we always, when we start with political theory for students for undergraduate course, it is started with political theory, and the political theory starts with these ideologies. Okay, so it is very important to understand that what is ideology first of all, why they are very important for us, why are we always talking about these ideologies in political parties, in elections, in many developments in democratic process we come across. And in many times in our families also, during the elections we find that there is conflict of ideology, and so there are difference of opinion, and many times it leads to clashes, and it many times violence also. So let us begin, try to understand first of all in general term what is ideology, what are the different examples of ideology that you particularly read in your course, and for other preparations also. So first of all, let us start with this understanding of ideology. Ideology is a controversial, contested, and political term. First of all, I told you that many times it is controversial. Why it is controversial? Because there are many ideologies which are controversial, which are conflicting in their nature. So though they are conflicting, but that doesn't mean that ideology is not important. Then ideology, they are coherent a set of ideas. These ideologies, they are coherent set of ideas, and the ideas and the belief systems which are there, they culminate into this particular system of ideology. So let us look into the features of ideologies. What are the features? Because many times in your UGC JRF exams also you are asked this question, ideology, what is ideology? Okay, and then one important question that many times comes is end of ideology debate. So that end of ideology debate I will do it in the next series, because I first want you to make understand what is ideology, and why these debates that will come later on when I will discuss why they emerged, and what is the meaning of that debate, that end of ideology. Okay, what is the relevance, and why ideology, different ideologies have their different relevance, which ideology is having more relevance in today's time. That is also important to understand कि विचारधाराएं जो हैं उनमें से बहुत सारी विचारधाराएं आज हम अपने जो पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसमें हम उसका इस्तेमाल हो रहा है, हमारे व्यू पॉइंट्स और बहुत सारी चीज़ें, हमारे व्यू ऑफ लाइफ, फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है, डेमोक्रेटिक संदर्भ में यूज़ हो रहा है, पावर रिलेशनशिप्स में यूज़ हो रहा है. ऐसा नहीं है कि कहीं एक अलग एक पर्टिकुलर स्फीयर है जहाँ पे हम आइडियोलॉजी का मतलब इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा नहीं है. क्योंकि यू वेरी वेल नो, व्हेन आई टॉक्ड अबाउट लिबरलिज्म, आई टोल्ड यू हाउ लिबरलिज्म it came from the term liber, and how it is very important for each one of us. Okay, for example, individualism is very important for us. Now what are the important features? So first of all, these ideologies they provides an account of existing power relationships. Okay, किस तरह का power relationships है, क्या dynamics है,
और मतलब जो शक्ति का संदर्भ है, संरचनाएं हैं, उनमें क्या डायनामिक्स है, ये आइडियोलॉजी के संदर्भ में हम समझ सकते हैं, ये हमें हेल्प करता है हमें समझने में। देन इट प्रोवाइड्स अ मॉडल ऑफ अ डिज़ायर्ड फ्यूचर, किस तरह का हमारा जो इंडिया के जो भी कल्चर किस तरह से होने चाहिए, इंडिया का जो है आगे का ब्लूप्रिंट किस तरह से होना चाहिए, क्या बदलाव होने चाहिए, सकारात्मक बदलाव होने चाहिए, राज्य को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, व्यक्ति को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, ये सारी बातें आइडियोलॉजी के अंदर आती हैं। इसलिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि हम आइडियोलॉजी को सिर्फ एक और एक व्यू पॉइंट से ना समझें कि इट इज़ अ कंट्रोवर्शियल, इट इज़ कॉन्टेस्टेड और इट इज़ पॉलिटिकल। Though it is political, though it is contested, though it is controversial, it is very very important because that provides a blueprint of how are we going to interact, or how, which philosophies are we going to follow, what are the morals, what are the ideas, what are the belief systems, what are the values that we are carrying is very important. The framework of how political change can and should be brought about, किस तरह से जो भी राजनीतिक बदलाव है कैसे लाया जाए, क्या किया जाए राजनीतिक बदलाव लाने के, हम किस तरह के आइडियोलॉजीज़ को मान्यता दे रहे हैं, और अब तक हम जिस बिलीफ सिस्टम पे चल रहे हैं क्या उसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है, क्या आने वाली पीढ़ी के लिए या आने वाले जो हमारा कल्चर है उसमें हम इस तरह के बदलाव लाएंगे तो हम एक अच्छा भारत जो है उसका निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि हम नेशन बिल्डिंग की भी बात करते हैं, तो नेशन बिल्डिंग में भी ये सारी बहुत सारी चीज़ें जो कल्मिनेट करती हैं। एवरी आइडियोलॉजी इज़ एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर सेट ऑफ आइडियाज़। मैंने बोला कि हर आइडियोलॉजी, फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिविजुअलिज्म की बात करें तो व्यक्तिवादी सिद्धांत व्यक्ति से ही उसका मेन कंसर्न होता है कि व्यक्ति जो है वहाँ पे केंद्र में होता है, इंपॉर्टेंट होता है, individual is important, and other for example society groups and other things communities they are secondary. So हर आइडियोलॉजी में एक आधार मात्र होता है, एक फाउंडेशन होता है जिसे हम इम्पोर्टेंस देते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। एंड देर आर मेनी आइडियोलॉजीज विच आर ओवरलैपिंग, एंड वाई दे आर ओवरलैपिंग, बिकॉज one ideology doesn't have any distinct categorization. It carries many things which are there within other ideologies that it follows, or it also talks about that, so that is not clear. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मार्क्सिज्म की बात करें, मार्क्सवाद की बात करें, तो मार्क्सवाद ने क्लास सिस्टम पे प्रहार किया है, मार्क्सवाद ने राज्य को कहा है कि राज्य नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। पर कभी भी मार्क्सवादी जो विचारधाराएं हैं उसमें ऐसा नहीं है कि एक ट्रांजिशन की बात नहीं कही गई है ना, पूरा का पूरा जो है रेवोल्यूशन नहीं था उसमें, उसमें एक ट्रांजिशन की भी बात कही गई, जिसमें जब अगर हम कैपिटलिज्म से हम कम्युनिज्म में जाते हैं तो एक आधार बनता है, एक रेवोल्यूशन बनता है जहाँ पे हम इन चीज़ों का बदलाव, सकारात्मक बदलाव कर सकते हैं पोलिटेरियनिज्म ला करके। तो बहुत कुछ जो है हर विचारधाराओं में बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि वो एक डिस्टिंक्ट कैटेगराइजेशन नहीं होता है, और थोड़ा बहुत उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अगेंस्ट स्टेट। We always say that Marxism is talking about stateless. But why it is talking about? It's not against the state. First of all, we need to understand. In fact, मैंने अपना जो मार्क्सिस्ट नेचर ऑफ स्टेट डिस्कस किया उसमें मैंने सारी बातें डिस्कस की हैं कि किस तरह से वो अपनी बातों को, मार्क्सवादी जो हैं विचारधाराएं हैं और जो नव मार्क्सवादी विचारधाराएं अपनी बातों को कैसे रखते हैं। तो हर आइडियोलॉजी का अपना एक संदर्भ होता है और अपना एक कॉन्टेक्स्ट होता है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में नहीं होता है। हाँ, हालांकि जो रेडिकल जो भी व्यू पॉइंट्स होते हैं, चाहे हम फेमिनिज्म में अगर रेडिकल जो पर्सपेक्टिव्स देखते हैं तो दे आर रेडिकल टू एन एक्सटेंट, कि वो चेंज जो है चेंज पे विश्वास नहीं करते कि हाँ चेंज होगा ही, तो दे आर टॉकिंग अबाउट द रेडिकल स्टेप। तो अब हम एग्जांपल्स देखें, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लिबरलिज्म है, उदारवाद है, लिबरलिज्म में बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। आई टोल्ड यू क्लासिकल लिबरलिज्म है, पॉजिटिव लिबरलिज्म है, नियो लिबरलिज्म है। दीज थ्री वेरिएंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड so how they emerged, how liberalism emerged, and how and what exactly which ideology we are following at present. Then conservatism, ठीक है, जिसे रूढ़िवाद कहते हैं, समाजवाद, सोशलिज्म, मार्क्सवादी मैंने अभी बताया, फासीवाद, फैसिज्म, और कई बार डेमोक्रेटिक कल्चर में भी हम कहते हैं कि फासिज्म आ गया, क्योंकि अथॉरिटेरियनिज्म आ गया तो फासिज्म आ गया। फेमिनिज्म, नारीवाद, इन विचारधाराओं का डेली लाइफ में भी हमारे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हम जब घर में इतनी अपने फैमिली लाइफ में भी इन चीज़ों को हम देख रहे होते हैं, तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट दैट कि क्या यहाँ पे जो है महिलाओं की इज़्ज़त की जा रही है या उनके साथ टॉर्चर हो रहा है, इस तरह की हम बात करते हैं। हम लिबरल आउटलुक की बात करते हैं, हम क्या पहन सकते हैं, क्या नहीं पहन सकते, हम क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। अगर इस पर कोई हमारे ऊपर कोई इंटरफ्रेंस करता है तो हम अगेन कहते हैं कि देर इज़ सम कंजर्वेटिव माइंडसेट विच इज़ गोइंग ऑन, माइंडसेट नीड्स टू बी चेंज। हम कोई भी लॉ की बात करते हैं हम कहते हैं कि माइंडसेट नीड्स टू बी चेंज। व्हाट इज़ दिस माइंडसेट? दिस माइंडसेट दे कम फ्रॉम दीज आइडियोलॉजीज़।
So ideologies is not only fixed for any political party. Ideology is not fixed for any particular elite class. Ideology, irrespective of class, caste, gender, ethnicity, ideology is for everyone, for all of us. And how we take this ideology, how we adapt this ideology, how we change these ideologies of our own, so that we can build a better future, that's very important. And then finally, environmentalism, पर्यावरणवाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के संदर्भ में। तो बहुत सारी बातें स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आइडियोलॉजीज़ में, और इसमें एक एंड ऑफ आइडियोलॉजी फ्रांसिस फुकुयामा का डिबेट है। आई विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट पार्ट 2 ऑफ द आइडियोलॉजी सीरीज। ओके, सो थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।